ماسٹر ممتاز صاحب میرے موجود ہیں. بلا لو گر مدینے میں تو میری زندگی ہوگی. بلا لو گر مدینے میں تو میری زندگی ہوگی. میں جانی چوم دوں گا تو مکمل بندگی ہوگی. ماسٹر صاحب یہ دسو کہ کتنے کلام تھے جڑے ورلڈ فیمس ہوئے اور میں چاہتا کہ اگر ایک ایک استائی سارے ناظرین کو اگر سنوا دے سو. علی علی مولا علی یا علی مولا علی آپ ہی مشکل کشا ہیں آپ ہی شیر خدا. آج بھی مشکل میں جو ان کو پکارے با خدا مشکل حل کرنے کو آ جاتے ہیں مولا علی. علی علی مولا علی ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کا کلام ہے. سارا زمانہ ہے حسین کا رب بھی درود بھیجے دیکھو وہ نانا ہے حسین کا. سارا زمانہ ہے حسین. سرکار مدینے والے میرے سوئے بھاگ جگا دو. حسنین کے صدقے میں میرا بیڑا پار لگا دو. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ایک یہ ہے جشن عید میلاد النبی ہے آمد ہے سرکار کی. آج عبداللہ کے انگنا میں رت آئی بہار کی. جشن عید میلاد النبی ہے آمد ہے سرکار کی. ایک یہ ہے میں بھی پاک پتن میں جاؤں تیری چوکھٹ پسر کو جھکاؤں کرم یا فرید یا فرید. ایک خواجہ صاحب کا ہے یا خواجہ تمہارے دیوانے ایک بزم سجائے بیٹھے ہیں ہم آج تمہاری محفل کو اجمیر بنائے بیٹھے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین. تو سارے دے پہ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تو اپنا میزبان رضوان حسین. ناظرین این ٹائم میں موجود ہوں مدینہ الاولیاء ملتان شریف دے اندر اور اج اساں موجود ہیں چوک کبھارانہ محلہ کیسرآباد گلی نمبر 2 دے وچ حضرت خواجہ یوسف سرکار المعروف منع میاں سرکار دے روضہ مبارک تے موجود ہیں. آج میرے نال ایک ایسی شخصیت ایک ایسی ہستی موجود ہے. اگر میں پاکستان اردو قوالی دی گال کراں تے بہت بڑا معتبر ایک نام ہے, بہت بڑا حوالہ ہے اور یقیناً سینکڑوں دے تعداد نال جنہاں دے کلام آڈیو ویڈیو کیسٹ ریڈیو دے تاکو سنن کو ملے. لیکن ایک انہاں دا ایسی نعت شریف آئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال جڑی نعت نے اس شخص کو اتنی پہچان دیتی کہ میں ادا کہ پورے ورلڈ دے اندر ایک پہچان ملی, ایک مطلب ایسا نام ملا. آج جڑی شخصیت میرا موجود ہے یقیناً کہیں بھی تعارف دے محتاج کہنی, لیکن میں اس شعر تو بعد انہاں دا تک ضرور تعارف کروے ساں اور اساں انہاں نال گفتگو کرے سوں. آج دی جڑی یہ گفتگو ہے بڑی اہم گفتگو اسی ایں چ تو قوالی دے بارے چ دسے سوں کہ قوالی دا آغاز کتھوں تھیا, قوالی دے جڑے ہے قوالی دا سفر کیا ہے اور انہاں دی قوالی دے نال جڑا واسطہ ہے وہ کڈن تو ہے کیویں ہے. تا ناظرین میاں صاحب دے انہاں الفاظاں تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کرے ساں کہ دنیا اُتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون, دنیا اُتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون تو آویں تے ہسن سارے تر جاویں تے رون. ناظرین میرے نال جڑی شخصیت موجود ہے جناب ماسٹر ممتاز صاحب میرے موجود ہیں. اسا سب تو پہلے تے انہاں کو مدینہ الاولیاء ملتان شریف دے ویلکم آتے ہیں. ست بسم اللہ جی آیاں کو سجن آویں اکھی ٹھریں اور او تو بعد انہاں نال گفتگو دا سلسلہ شروع کرنے. تو ناظرین جویں میں تو کو دسیا کہ اے او شخصیت ہیں انہاں دی ایک نعت جڑی ہے سرکار مدینے والے میرے سوئے بھاگ جگا دے.
सरकार मदीने वाले मेरे सोए भाग जगा दे सदके हसनैन के जी मेरा बेड़ा पार लगा दे या रसूल अल्लाह। तो यकीनन ये एक कलाम नहीं सैकड़ों की तादाद नाल इन्हां दे कलाम जिहड़े हैं वो दुनिया दे विच फेमस है, दुनिया दे विच जानी और पहचानी शख्सियत हैं। तो नाज़रीन आओ गुफ्तगू वाले पासे वेने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल चाल है मुमताज़ भाई, तबीयत सेहत मिजाज कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है सरकार का, दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि तुसें एक अहम शख्सियत और वैसे तो तुसें सारे नाल बड़ी सारी मुहब्बत करन दे, लेकिन हर साल तुहाडी मेरी मुलाकात मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ दे विच थी वेंदी। ये सब सरकार का सदका है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का करम है और आपकी मोहब्बत है। और माशाल्लाह हमारे पीरो मुर्शिद चचा पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ शाह, इनकी करम नवाजी है कि इस बहाने से आप लोगों से मुलाकात हो जाती है, आपके दीदार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। मुमताज़ भाई असां अपनी गुफ्तगू वाले पासे आसूँ। मेरा पहला सवाल है कि अगर असां कवाली की गाल करें हैं, कवाली का जिहड़ा सफ़र है ये किहड़े कदन तो शुरू थिया और किवें शुरू थिया? कवाली का जो सफ़र है ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से समा शुरू हुई है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने बहुत कलाम लिखे, हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, बुज़ुर्गान दीन ने पाक और बाबरकत कलाम लिखे। समा का जो सिलसिला है वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा ये दसो कि तुहाडी अगर असां गाल करें कि तुहाडा कवाली दे नाल जिहड़ी जुड़त है तुहाडे तो शुरू थिया या तुहाडे बुजुर्गान भी एक कवाली दे नाल जुड़े होया? हमारे बुज़ुर्ग, मेरे वालिद भी कवाल थे, मेरे दादा भी इसी शोबे से वाबस्तगी थी। हमारा एक ख़ानदानी काम है। हमारे बुज़ुर्ग अबा वजद हैं वो जो है ये कवाली करते रहे, उसी से सिलसिले से हमारा सिलसिला चल रहा है। तुहाडे अगर खानदान दे विचों गाल करें तो बहुत सारे जिवें तुसां नाम दस्सन, मैं चाहसा कि चंद एक नाम जिहड़े जिन्हां को पाकिस्तान दे विच जाना पहचाना वेंदा होवे, चंद एक सकूँ अपने बुजुर्गवार दे विचों कोई नाम दसे सो कि जिहड़े कवाली दे हवाले नाल जिन्हां दी एक पहचान बनी। कवाली में हमारे वालिद फैज़ अहमद, हमारे दादा ईद मोहम्मद, और वैसे हमारा जो शोबा है वो बेसिकली जो है वो क्लासिकल से है। मेहदी हसन साहब मेरे चचा ससुर पंडित खां, वो रेडियो पाकिस्तान मुल्तान पे कंपोज़र थे, और हाजी खुर्शीद अहमद नाथ खां और उस्ताद कबीर खां सितार नवाज़। तो हमारा ये सिलसिला जो है बुज़ुर्गों से चला आ रहा है। मैं कवाल हूँ लेकिन हमारे ख़ानदान में जो है खान साहब लोग हैं। खान साहब मेहदी हसन खान साहब का तुसां तारफ़ करवाया, जिक्र किया, तो मैं ज़रूरी समझसा कि खान साहब मेहदी हसन खान साहब का मुल्तान दे नाल भी एक रिश्ता है, मुल्तान दे नाल भी जुड़त है। इत्थें ही बिल्कुल करीब दे एक इलाका है मखदूम रशीद, जिथा खान साहब मेहदी हसन खान साहब ने अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त भी इतना गुजारा, और मुल्तान दे नाल आप दी बड़ी सारी निस्बत भी है और आवना मिलना भी। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन खान साहब जो हैं बेसिकली चीचावतनी में एक चक है गारा, वहाँ आपकी रिहाइश थी। हमारे जो बुज़ुर्ग इंडिया से जैसे आए तो वहीं आए। चीचावतनी में भी हमारे घर और खान साहब के घर बराबर बराबर थे, तो वहीं से ये शुरू हुआ मामला। और बहुत बड़ी हस्ती है खान साहब, तो अल्लाह उनको करे की रहमत करे। आज जो कुछ भी कर रहे हैं ये उन्हीं की दुआओं से कर रहे हैं। यानी दा मतलब है कि मुमताज़ भाई चीचा वतनी भी खान साहब दे बिल्कुल करीब आवे, तो कराची तक ना उन्हें तुहाडा साथ छोड़ा ना तुसां उन्हां दा साथ। इसमें कोई शक नहीं है, ये उनकी मोहब्बत, उनकी दुआओं का असर है। मास्टर साहब ये दसो कि कितने के कलाम थे जिहड़े वर्ल्ड फेमस होए, और मैं चाहसा कि अगर एक स्थाई सारे नाजरीन को अगर सुनवा रहे सो, क्योंकि झोंक टीवी वसेब की आवाज़ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के डिठा वेंदा है, क्योंकि झोंक टीवी ने हमेशा तो पाकिस्तान दियां तमाम ज़बानां उर्दू, सराइकी, पंजाबी, पख्तून, बलोच हर ज़बान की नुमाइंदगी की है। इन्हें मुहब्बतां यानी नफरतां को ख़त्म करके मुहब्बतां वास्ते रस्ते हमवार कीते। बेशक झोंक टीवी जो है माशाल्लाह बहुत उम्दा काम कर रहा है। पहली बात तो ये है कि मुल्तान शरीफ से निस्बत है झोंक टीवी को। दूसरी बात ये है माशाल्लाह पंजाबी, उर्दू, सिंधी, सराइकी हर ज़बान को मुतारिफ़ कराया है झोंक टीवी ने, और अच्छे अच्छे फ़नकारों को पेश किया है, और मोहब्बतें तकसीम कर रहा है, बांट रहा है, और इंशाल्लाह बांटता रहेगा। हमें ये तुहाडा वड्डापन है, तुहाडी मुहब्बत है, क्योंकि तुहारे जे लोग अगर साकू इज्जत ना देवें तो यकीनन असा कुछ भी नहीं है। इवें ही होंदा है कि एक बै को गिव एंड टेक के असा तो इज्जत देने तो साकू इदारा उतनी देर तक इदारा नहीं होता जितनी देर तक उनके नाल लोग ना जुड़े हुए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये तो सारा मोहब्बतों का सिलसिला है, और मोहब्बतों से सारा सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि ये दुनिया जो तख्लीक हुई है यही मोहब्बत में हुई है। अल्लाह को अपने महबूब से मोहब्बत हुई तो अल्लाह ताला ने इस जहान को तख्लीक किया, इसलिए मोहब्बत अहमियत है, मोहब्बत अहम चीज़ है। और माशाल्लाह झोंक टीवी जो है वो मोहब्बतें बांट रहा है, और मेरी भी दुआ है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करम से कि झोंक टीवी इसी तरह से मोहब्बतें बांटता रहेगा क़यामत तक। बिल्कुल मुमताज़ भाई, मैं चाहसा कि एक अस्थाई जड़ी है दो चार कलाम जेड़े जितने भी तुहाडे कलाम फेमस थे, ताकि आज
असा उन्हां तमाम कलामां को नवां करूं ते क्योंकि ई टाइम तुआको और मेरे को पूरी दुनिया दे ॾिठा वेंदा पई मैं चाहसा एक एक अस्थाई अगर तुसा महसूस ना करो। पहला कलाम तो है सरकार मदीने वाले। सरकार मदीने वाले मेरे सोए भाग जगा दो, हसनैन के सदके में मेरा बेड़ा पार लगा दो, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक ये है जश्न ईद मिलादुन नबी है, आमद है सरकार की। आज अब्दुल्ला के अंगना में रुत आई बहार की, जश्न ईद मिलादुन नबी है, आमद है सरकार की। एक ये है मैं भी पाक पतन में जाऊं, तेरी चौखट पिसर को झुकाऊं, करम या फरीद या फरीद। एक ख्वाजा साहब का है, या ख्वाजा तुम्हारे दीवाने एक बज़्म सजाए बैठे हैं, हम आज तुम्हारी महफिल को अजमेर बनाए बैठे हैं। और काफ़ी कलाम हैं। अच्छा मैं चाहसा माशाल्लाह वैसे तो सैकड़ों की तादाद तुहाडे कलाम हैं और यकीनन पहला कलाम तुसां नात मुबारक सुनाई। मैं भी काफ़ी सारे कलाम जड़े जनाब दे सुने और मैं समझदा कि पाकिस्तान की कोई ऐसी कंपनी नहीं जिन्हें तुहाको रिकॉर्ड ना किया होवे और कोई ऐसी कंपनी बची नहीं जिन्हें तुहाको रिकॉर्ड नहीं किया हो, पाकिस्तान कोई नहीं जानता। मैं चाहसा कि कोई कसीदा अगर तुहाडा कोई भी कसीदा फेमस होया होवे तो एक अस्थाई मौला अली का कलाम है। अली अली मौला अली, शाह अली मौला अली, आप ही मुश्किल कुशा हैं, आप ही शेरे खुदा। आज भी मुश्किल में जो उनको पुकारे बाखुदा, मुश्किलें हल करने को आ जाते हैं मौला अली। अली अली मौला अली। एक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कलाम है। सारा ज़माना है हुसैन का, रब भी दुरूद भेजे, देखो वो नाना है हुसैन का, सारा ज़माना है हुसैन। माशाल्लाह तुसा क्योंकि मौला सरकार अमीर उल मोमिनीन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा कलाम सुना के मेरे को मजबूर कर दिता है कि रुबाई ते मैं रुबाई तो बाद वाले पासे गुफ्तगू वाले पासे आसा कि अली अली है अली वली है, अली अली है अली वली है, अली दे सदके कुल कायनात को वक्त लगता है, तेरी समझ विच हुसैन कोई नहीं, अली को समझण ते वक्त लगता है। तो मास्टर साहब ये दसो कि तुहाडी कवाली दी अगर असां गल करें तो फैमिली दे कितने फर्द हैं जिहड़े टाइम कवाली दे तुहाडे नाल जुड़ा ते? माशाल्लाह सारे फर्द अपने घर के हैं। 6 बेटे हैं मेरे साथ, 2 भाई हैं, 2 पोते हैं। माशाल्लाह सारे अफराद जितने भी हैं फैमिली के वो घर के हैं सारे। तुसां आदे वे लंगर बैर न वंजे, सारा लंगर अपने घर तकसीम हो। ये सरकारों की करम नवाजी है, ये जिनके दरों पे बैठे हैं ना इनकी करम नवाजी है। अच्छा मास्टर साहब ये दसो पाकिस्तान तो इलावा कितने मुल्कों के वजन का तुहानू इन टाइम तक शर्फ हासिल थी और कितने मुल्कों के तुसां कवाली कर चुके हो? ये काफ़ी मुल्कों में गए हैं माशाल्लाह से। साउथ अफ्रीका, टोरंटो कनाडा गए हैं, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, मोरोशीस, तंजानिया, दुबई, कतर, बहरीन, मस्कत, काफ़ी जगह गए हैं। सब सरकार का सदका है, जितना उसका शुक्र अदा करें उतना कम है। एक बड़ा रूटीन तो हट के एक सवाल है, कोई ऐसी जगह हो जिथे तुसा कवाली वास्ते गए हो तो मतलब कलाम दी फरमाइश हुई होवे ते ताकू थोड़ा जिहा यानी उनके वास्ते टाइम की ज़रूरत पई हो? मसला ये है कि हमारा वो काम है जैसे जहाज़ पे फौजी जाता है ना तो हर वक्त तैयार रहता है, तो हमारा वो काम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो सरकार के कर्म से कहीं कोई उलझन नहीं हुई, यानी कि हर वक्त तैयार रहते हैं अपने काम के लिए, और कामयाब वही होता है जो अपने काम पे हर वक्त तैयार है। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा ये दसो कि अगर पाकिस्तान के असां कवालों की गल करें तुहाडे पसंदीदा किहड़ा कवाल है? माशाल्लाह जी सारे कवाल अच्छे हैं। आज गुलाम फरीद साहबरी, मकबूल साहबरी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं जो मशहूर अजीज़ मियाँ कवाल, बड़े बड़े कवाल गुजरे हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे। अच्छा ये दसो कि असां अगर जब कवाली की गल करें कवाली दे विच कितने मतलब राग इस्तेमाल थींदे? देखिए जी कवाली में जो है जितने बुज़ुर्गों ने राग बनाए हैं वो सभी इस्तेमाल होते हैं। 6 राग और 30 रागनी हैं, सब के सब इस्तेमाल होते हैं।
اچھا جس میں بھی یعنی کہ بزرگ لوگ بڑے لوگ دھن کمپوز کرتے ہیں اسی حساب سے ہر راگ میں استعمال ہوتا ہے قوالی میں. آخری زیادہ تر مالکوس بھیروی یعنی کہ راگنی مالکوس استعمال ہوتا ہے اور کئی 6 راگ ہیں سبھی استعمال ہوتے ہیں اس کام میں. آخری دو سوال کرے ساں تواڈے کیونکہ ہر آرٹسٹ دا ہر کلاکار دا اپنا پسندیدہ بھی ایک راگ ہوندا ہے. او تساں دسے سو کہ تساں زیادہ طور کیڑے راگ کو پسند کرتے؟ بھائی زیادہ جو ہے نا ہم بھیروی میں گاتے ہیں زیادہ. ہاں مالکوس بھیروی یہ استعمال زیادہ ہوتے ہیں. بہت شکریہ بہت مہربانی ممتاز بھائی. آخر دے جھوک ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو کوئی اچھا جیا پیارا جیا پیغام دے سو؟ بس یہ پیغام یہی ہے کہ انسانیت بڑی چیز ہے, محبت بڑی چیز ہے. دنیا میں جب تک ہے محبت تقسیم کریں, آپس میں پیار کریں, پیار محبت سے سب کچھ ہے. جی بہت شکریہ بہت مہربانی. جی ناظرین جی میں کہ میں تو کو دسا کہ میرے نال ماسٹر ممتاز صاحب گفتگو کریں پہن آخر دے شاکر سجابادی صاحب دے ان الفاظوں دے نال میں کو دسو اجازت کہ تو محنت کر محنت دا صلا جانے خدا جانے. تو محنت کر محنت دا صلا جانے خدا جانے. تو ڈیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے. اللہ حافظ اللہ نگہبان.